Welcome students. This is worksheet number 35, chapter 3, metal and non-metal is continuing. So in earlier videos we have studied about metals, non-metals, their physical properties, there are some chemical properties of metal and non-metals, and ionic compounds, formation of ionic compounds, which you can see in the previous videos in RG classes name channel, and you can subscribe and share channel so that I can start live classes for you in which live doubts can be cleared. Now come to the topic ionic compounds. In ionic compounds, so worksheet number 35 basically dated 23rd, but it is a topic for your exams, important topic. Ionic compounds. What are ionic compounds? We have studied ionic compounds are those compounds which are formed by ions, that is cations and anions, that we have studied in the, you can see in the earlier video, the video under the playlist class 10th on this channel, which link I have shared you, and it is RG classes channel. You share this to your friends and unknown people and subscribe also for future videos. So what are the ionic compounds? We have studied something about that in the previous videos. You have learned about that. If you haven't watched that video, watch that video for more basic knowledge. Atoms that gain an electron, you know that they carry a negative charge. Why a negative charge? I have earlier told you negative charge, and they are called anions. How? If you take, let us take oxygen for example. It has 8 electrons, so its first shell will have 2 electrons and second shell will have 6 electrons, that you know. And this, it has to obtain nearest noble gas configuration. Remember, nearest. So it can obtain the configuration of helium, which contain only 2 electron, or configuration of neon, which contains 10 electron. For that it has to lose 6 electrons or gain 2 electrons. So it would be easier for oxygen to gain 2 electrons. If oxygen gains 2 electrons, let us suppose oxygen gains 2 electrons, then the number of electron will become 2 and here 8, because it has gained 2 electrons. 2 electrons has been gained by oxygen. So the electrons will become, how many electrons will be there? 10. But protons are still, because number of protons is equal to number of electrons in an atom. So protons were 8, so it was plus 8 of protons, and now though since it has gained 2 electrons, so charge of minus will become, it will become minus 10 due to gain of 2 electrons. So net charge will be minus 2. So number of electrons an atom gains and becomes an ion will become a charge on them, negative charge on them. If the atom loses electrons, in contrast, atoms that lose electrons and thus obtain a net positive charge are called cations. So you can define what are anions. The atoms when gain electrons and obtain a net negative charge, it will be minus 2, minus 1, minus 3. It can be depending upon the number of electrons they have gained and their valency. The number of electrons that they gain, atoms gain, depend upon their valency. So I think you understood that. Now, which gain electron and which metal, in out of metals and non-metals, which gain electron and which no lose electrons? Anion tend to be non-metals, means the non-metals forms anions, while cations are formed by metals. Why? Because by definition, if you see chemically, we have seen metals. The metals contain 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell, which they will prefer to lose.
because for gaining they has gained 7 electrons here to complete their octet. If it contains 2 electrons, it had to gain 6 electron, it has to gain 5 electron, which is a bit difficult. तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना उनके लिए मुश्किल है इतने इतने, तो वो क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, जिनके लास्ट में 1 2 3 होते हैं। ये आपने 9th में पीछे सीखा होगा पहले प्रीवियस उसमें। तो ये आप समझ गए कि मेटल्स ये होते हैं। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होते हैं उनके। ये 4 वाले तो आपके गेन लूज़ नहीं करते, 5 वाले जो हैं ये 3 गेन कर सकते हैं या फिर 5 लूज़ कर दें, तो प्रेफरेबल वो 3 गेन करेंगे। 6 वाले भी 2 गेन कर लें या 6 लूज़ कर दें, तो 6 लूज़ करने की बजाय वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। 7 जिनके लास्ट में है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें 8 बनाने के लिए, या फिर ये 7 लूज़ कर दें ताकि इनका शेल ख़त्म हो जाए और पीछे वाला शेल कंप्लीट है। लेकिन ये फिर प्रेफर करेंगे गेन करना। जो गेन करेंगे उन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? गेन करने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे लेकिन प्रोटॉन्स के नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आप एग्जांपल्स करके देख सकते हैं, डिफरेंट एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के हम देख सकते हैं कि मेटल्स जो हैं जिनके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एटोमो शेल में, वो कैटायंस बनाएंगे, पॉजिटिव आयंस, और नॉन मेटल्स एनायन बनाएंगे। फिर जब अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे कैसे एक दूसरे को? भाई इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किए हैं, जो गेन किए, वो जाएंगे कहाँ पे? वो आपस में इनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऑल्सो आयंस में रेफर टू ए सिंगल एटम और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप भी बन सकता है। अब आयंस जो होती हैं सिर्फ ये नहीं है कि Na+, ये सिंगल एटम है, सिंगल आयन होगी, मोनोएटॉमिक, O2-, चार्ज से डिफरेंस नहीं है। एटम कितने हैं? एक ही टाइप के एटम्स हैं, तो इसको बोलते हैं हम मोनोएटॉमिक आयंस। ये आपने पहले पढ़ी होंगी 9th में। फिर आती हैं डायएटॉमिक आयंस। ऐसे जैसे ये है, इसने कंबाइन भी कर लिया, उसके बाद भी ये पूरा नहीं है, इस पर चार्ज है -2, तो ये कंबाइन करेगा जिससे 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें -2 है ना चार्ज, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ इसको मिलेंगे, उसी के साथ ये कंबाइन करके बनाता है। तो दिस इज़ कार्बोनेट आयंस। दिस इज़, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम्स। इसमें 2 एटम्स हैं। इसी तरह आप और भी दे सकते हैं, HCO3, इसमें 1 हाइड्रोजन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो 3 टाइप्स ऑफ एटम्स की बनी हुई है यहाँ। तो आयंस सिर्फ एटम से नहीं, ग्रुप ऑफ एटम से भी बनी हो सकती है। द अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड ईच टुगेदर इन आयनिक बॉन्ड्स। तो वही आयोनिक बॉन्ड जो हम पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड में अपोजिट चार्जेस, मेटल में जो प्लस चार्ज है और नॉन मेटल में माइनस चार्ज, ये होल्ड रहता है किससे? आयनिक बॉन्ड से, और उससे बनता है आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ आयन, जो आपको स्टार्टिंग में हमने बताया। लॉस और गेन ऑफ वन एटम मैचेस विद लॉस और गेन ऑफ अदर। जितना कोई एक एटम में से लॉस होगा, दूसरा उतना ही गेन कर ले, तो ये आपस में एक पेयर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ले लें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो 281 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है शुरू में। तो इस पर चार्ज, नेट चार्ज कितना है? 0, क्योंकि प्लस और माइनस बराबर हैं। लेकिन ये चाहता है कि इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देता है, क्योंकि लास्ट शेल इसको कंप्लीट करना है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट में। तो या तो ये 7 गेन करे या 1 लूज़ करे। तो 1 लूज़ करना ईजी है, तो ये 1 लूज़ कर देगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, इट विल हैव ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, प्रोटॉन तो 11 ही है, तो प्लस 11 है और माइनस कितना बच गया? 10। तो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? Na+, एक चार्ज आएगा। वो एक हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि 1 एक ही प्लस का साइन है, तो इसका मतलब 1 चार्ज है। Na+ बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको? जिसके साथ मैच करता हो। थोड़ा बिना मैच के भी कर सकते हैं, 2 एटम भी ले सकते हैं। अब आप ले लो क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल Cl, क्लोरीन का आपका सिंबल हो गया Cl। तो Cl जो क्लोरीन का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अब इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो ईजी है इसका 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? वो सोडियम दे सकता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन।
तो 1 इलेक्ट्रॉन आने पर इसके प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो पहले से ही हैं 17 जो थे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया, प्रोटॉन गेन लूज नहीं हुआ, तो +17 चार्ज है इस पर। माइनस कितना हो गया? माइनस हो गए 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 17 इसके पास पहले थे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -18 और प्रोटॉन +17, तो इस पर चार्ज आएगा -1। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आता है? -1। ये प्लस कैटायन, मेटल, सोडियम मेटल है, कैटायन बनाई, क्लोरीन ने नेगेटिव आयन बनाई, एनायन, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं NaCl। जहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ट्रांसफ़र किया है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, ईच एटम जो करते हैं इसमें, दिस इज NaCl। इसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये हम लिखते नहीं है क्योंकि चार्ज अंडरस्टूड है वो। तो ये आपका एक आयनिक कंपाउंड बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जो आपके घर में मिलता है। तो आप ये समझ रहे होंगे। इसी तरह से आप दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो इस तरह से आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक अभी है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल, तो वो हम देख लेते हैं। फिजिकल नेचर, सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवट हार्ड, थोड़े हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, क्योंकि ट्रांसफ़र हुआ है, शेयर नहीं हुआ, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में उनके एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए वो ब्रिटल होते हैं, और जब उनको हम प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएंगे। वो कभी भी क्या है, लचीले नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप बनाना सीखें, कैसे बनाएं कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और क्लोरीन के 2 एटम्स को 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो आप बना के देख सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है कि आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है आपको टेम्परेचर से। मेल्टिंग मीन्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, बॉइलिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो आप सॉलिड से अब लिक्विड बनाते हो, जैसे आपने पहले देखा हो, ये सॉलिड हो तो बिल्कुल पैक्ड है सॉलिड। सॉलिड मीन्स एटम्स आर पैक्ड टू ईच अदर। अब इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सॉलिड से लिक्विड बनाने में। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर चले जाते हैं एटम्स, और गैस में और ज़्यादा दूर चले जाते हैं। गैस बनाना मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो और दूर चले जाएंगे एटम्स, तो क्या होगा, तब आपको और ज़्यादा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये आपको डायग्राम इसमें दिखाई है, वो भी दिखा देते हैं हम। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज उनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आयन्स के बीच में, उनको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जितनी ज़्यादा दोगे उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखें, ये आयनिक, ये है सोडियम क्लोराइड में, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़े डॉट डॉट दिखाए हैं। जो ग्रीन वाले डॉट हैं वो क्लोराइड आयन दिखाई है। क्लोराइड मतलब क्लोरीन की नेगेटिव आयन, एनायन ऑफ क्लोरीन जो है वो क्लोराइड है, और सोडियम की आयन दिखाई है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिससे कि वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन सके। सॉलिड से लिक्विड बनेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। सोलुबिलिटी, आयनिक कंपाउंड्स आप देखिए, नमक आपके पास है वो वाटर में सोलूबल हो जाता है, तो वाटर में ये सोलूबल हैं बिकॉज दे आर आयनिक कंपाउंड्स। लेकिन कैरोसिन या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये इनसोलूबल हैं। कैरोसिन और पेट्रोल में ये मिक्स नहीं होते। जो नमक आप मिलाओगे, कभी आप नमक घर पे मिला के देखो, तेल में मिक्स नहीं होगा, तेल में नीचे बैठ जाता है। और अगर आप पानी में मिलाओगे नमक, आप पानी में तो मिलाते ही हो, सब्ज़ी बनाते हो आप नींबू पानी बनाते हो, तो इससे पता लग, आप आइडिया लगा सकते हो। एक एग्जांपल से नहीं, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोलुबल इन वाटर एंड नॉन सोलुबल इन कैरोसिन एक्सेट्रा। ऑयल वाली जो चीज़ें हैं उनमें ये नॉन सोलुबल है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको चार्जेस चाहिए, और आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड में तो चार्ज ही चार्ज हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं आयनिक, उनमें आयन्स हैं अलग अलग, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, चार्ज पार्टिकल से। तो आयनिक कंपाउंड को जब हम सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, तो उसमें क्या होंगी, आयन्स आएंगी, इसमें आयन्स तो हैं, जिससे कि वो अपोजिट साइड पर जा सकती है। नेगेटिव वाली पॉजिटिव साइड जा सकती है और पॉजिटिव वाली
नेगेटिव साइड जा सकती हैं। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। पर सॉलिड स्टेट में ये ध्यान रखना, अपना सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। ये अगर आपने नमक ले लिया सॉलिड और उसमें आपने 2 तार लगाई, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, नहीं होगी, क्योंकि उसमें आयंस नहीं है। क्यों नहीं करता सॉलिड स्टेट में? आयंस नहीं है। जब वो पानी में, वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, तब उसमें क्या होता है, आयंस बन जाती हैं। या मोल्टन स्टेट में जब हम मेल्ट कर दें उसको, तब वो आयंस बन जाती हैं, जिससे कि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हट जाती हैं। नहीं तो आयंस मूव ही नहीं करेंगी। जब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तेज़ होंगी तो आयंस मूव नहीं करेंगी, फ्रीली मूव नहीं कर सकती। और फ्रीली मूव नहीं करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, चार्जेस को फ्री मूव करना पड़ेगा। फ्री मूव वो तब करेंगी या तो उनका मेल्ट कर दिया उनको, जिसके कारण उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट गई, या फिर आपने पानी में उनको डिज़ोल्व कर दिया जिससे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हट गई। ये एक सेटअप है। कंडक्टिविटी मतलब कितना वो कंडक्ट करते हैं सॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी को, कितना चार्जेस को एक दूसरे से। तो आपने यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन लिया, जो भी आपने सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होता, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। आप MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है। आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये भी सॉल्ट है। जो आप साबुन या डिटर्जेंट यूज़ करते हो वो भी सॉल्ट हैं। तो सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, तो हमने कोई भी सॉल्ट, अलग अलग सॉल्ट इसमें दे सकते हैं। ये ग्रेफाइट रोड है, कंडक्टिंग रोड। ग्रेफाइट को कंडक्ट करता है, आपने पहले पढ़ा होगा। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बीकर है आपके पास, यहाँ पे आपके पास बल्ब लगाया है। बल्ब इसलिए लगाया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो बल्ब आपका ग्लो करेगा, जिससे आपको पता लगेगा। आपको पता कैसे लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जा रही है? वायर्स में से दिखेगी नहीं। यहाँ बैटरी है, बैटरी क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और स्विच कि आप जब आप ऑन करोगे स्विच और ऑफ करोगे, ओपन एंड क्लोज करोगे स्विच को, तो आप जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, मतलब इसको जोड़ोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से अगर कंडक्ट हो रही है तो यहाँ इनका तो आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ बैटरी से अगर नेगेटिव यहाँ से चले चार्ज, अब ये यहाँ तक कैसे पहुँचेगा दूसरे एंड तक? इस वाटर के थ्रू। अगर ये वाटर में कंडक्शन होगा तो वाटर में जो सॉल्ट डाला है अगर वो कंडक्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ ऐसे इसके थ्रू चली जाएगी। कैसे जाएगी? ये यहाँ आयंस देगा, नेगेटिव आयंस, माइनस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये चार्जेस इसमें फ्री होंगे, वो चार्ज आगे मूव करेंगे इसको लेके। तो ये आप समझ गए कंडक्टिविटी कैसे टेस्ट करनी है। अगर बल्ब जलेगा उसमें तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। छोटी क्लासेस में आप अलग अलग पेंसिल्स के लिए और चीज़ों के लिए करते थे। थोड़ा इसमें भी हम ध्यान दें, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके कितने ज़्यादा हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 1074। दिस इज़ के का मतलब है आपका केल्विन। आपने पहले 9th में पढ़ा होगा केल्विन। अगर इसमें से हम इसको डिग्री सेल्सियस में लें, 273 माइनस करें तो ये हो जाएगा 801। जनरली हमें डिग्री सेल्सियस की आदत है, तो 801 डिग्री सेल्सियस मतलब 801 डिग्री। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये देखिए ये कहाँ जाके मेल्ट हो रहा है सॉल्ट। और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है, 1686। 1686 में से अगर हम केल्विन से इसको चेंज करें डिग्री सेल्सियस में तो ये बन जाएगा 1413। मतलब 1413 डिग्री सेल्सियस पे इसको अगर आप गर्म करोगे तब जाके ये क्या बनेगा? गैस बनेगा। इतना ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जबकि वाटर 100 पे बनता है। यह है लिथियम क्लोराइड LiCl, उसका भी देखिए 887 1600। कैल्शियम क्लोराइड 1045 1900, इसका केल्विन में। ये कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा है, 82850 मेल्टिंग पॉइंट और 3120 बॉइलिंग पॉइंट। ऐसी मैग्नीशियम क्लोराइड का तो बहुत ही हाई है, मोर देन 500 डिग्री 600 डिग्री से भी ज़्यादा इनके। और बॉइलिंग पॉइंट तो आप देखिए हज़ारों में जा रहे हैं यहाँ पे। अब आपके पास क्वेश्चंस आपके कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम। आपके एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन ए नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड। जो गेन करते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो नेगेटिव चार्ज आने के बाद जो बनता है वो बनते हैं एनायंस। ऐसे ही एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आने पे क्या बनते हैं आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज आने पे आपके बनते हैं कैटायंस। कैटायंस पॉजिटिव चार्ज वाले, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन डैश इज अप्लाइड। जब हम क्या अप्लाई करेंगे आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक हो जाएं? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। उन पे प्रेशर लगाएंगे तो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाएंगे, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो शीट्स की तरह बन जाएं। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड्स में? बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स
have strong forces of attraction, have high melting and boiling both because considerable amount of energy, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनके बीच जो आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेज हैं उनको ब्रेक करने के लिए। सो आप ये लिख सकते हैं, आपको दिख गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट इज why ionic compounds in solid state do not conduct electricity but are able to conduct in molten state? Because for conducting electricity there are free charges are required, and in solid state ionic compounds have strong force of attraction due to which ions cannot move. So you can see this, ionic compounds in solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure, and but in molten state they can conduct. Ionic compound conduct electricity in molten state as the electrostatic forces of attraction, जो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है आयनिक कंपाउंड्स की, वो मोल्टन स्टेट में ब्रेक हो जाती हैं। जब मेल्ट हो गई तो आयंस आपस में हीट एनर्जी के कारण अपनी फोर्सेज को तोड़ देती हैं, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका आंसर है सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड्स। सो दिस इज द diagram of conduction of electricity in ionic compounds. So you can take any ionic compound, sodium chloride. In sodium chloride Na plus and Cl minus ions will be there. So negative ions will go to positive side, and positive ions will go to negative side. तो ये आप इसमें इस डायग्राम को दिखा सकते हैं। 5th क्वेश्चन। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब का आपका इस तरह का बटन होगा, वहाँ पे जब आप चैनल पे जाएंगे इस तरह का आपको आइकन दिखेगा सब्सक्राइब, नीचे जहाँ वीडियो चल रहा है उसके नीचे, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर ये रेड की बजाय वाइट हो जाएगा और एक बेल ऐसे बनी होगी, उस बेल आइकॉन को दबा देंगे तो आपको जब भी वीडियो मैं लिंक शेयर करूँ आपको जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी कि वीडियो अपलोड हुआ है, जिससे आप इसको देख सकते हैं। अगर शेयर कर रहे हैं हम तो उससे क्या है कि आप बाद में लाइव क्लासेस भी मेरी देख सको।